I welcome everyone for today's Sunday pre-webinar and thank you for taking time on Sunday to attend today's webinar. So as you all know, we are going to see about Marma therapy today. Why Marma therapy? Because Marma therapy requires zero investment, no instrument is required, no extra space is required, no extra adjustments are required in your present clinic, no specialization like MD, etc. is required. Even if you are plain BMS, you can do it immediately. It can be implemented immediately just after the lecture and treatment done in no time. So it doesn't require much time to perform your treatment also. And very beautiful thing is that it gives instant result, maximum patient satisfaction and happiness is been achieved due to Marma therapy, Marma Chikitsa. So it is a treatment in minutes and happiness for life. As we have seen in the post also, today many of our past delegates who have already done Marma Chikitsa with us, they will be sharing their experience. And Dr. Komal Khandelwal ma'am, who is the mentor for Marma Chikitsa, she'll be also sharing few of her case, few of her techniques also uh, about Shipra Marma stimulation. So let's begin with our session. First of all, we'll start our session with Dr. Vandana Thorat ma'am. She, as I said earlier, she is a past delegate of IIAS. She has completed her Marma Chikitsa course with us 3 to 4 months back. And after that, she immediately started implementing in her practice. So Dr. Vandana Thorat ma'am, she has completed her BMS in 1995-96. So many of the delegates who have joined today must have born that time. So at that time, she has completed her graduation from Seth Govindji Raoji Ayurved Mahavidyalay, Solapur. She further pursued her PGPP, that is postgraduate program in Panchakarma proficiency in 2008 from Tirak Ayurved College. She has been practicing pure classical Ayurveda from many years with special expertise in Panchakarma. And she is also actively involved in preparation of Ayurvedic medicine, including Panchabhautik formulation, which she applies in her clinical practice based on Panchabhautik principles. At that time, when the growth and the structured knowledge sharing of Ayurveda were limited, you all know in 1995-96, such platforms, online learning platform, educational platforms were not limited, okay? But she continued her dedicated practice in her hometown and rural areas, serving the patient with sincerity and strong clinical observations. In 2008, she also rejoined the clinic of Jamadagni sir parallel with her PGPP training, which further strengthened her experience. And from COVID period onwards, she upgraded her clinical knowledge through IIAS platform, attending various workshops with us. Recently, she has completed the Marma Chikitsa workshop, which was the last batch, and she has been achieving very encouraging results, especially in pain management and other clinical conditions. Because we all know that I have just introduced her that she's been practicing in rural area. In such cases, patients are not ready to pay high. Even if you charge 100 rupees for Marma Chikitsa, they will be happy to pay you 100 rupees. And the time required is no time required. There is no special instrument to be bought, special investment to be done, right? So everything 100 rupees is in your pocket. You can even charge 50 rupees according to the place where you're practicing. Okay. So today we'll be seeing one of her such case, beautiful case. One of her successfully management cases is been presented today. I'll request Dr. Vandana Thorat ma'am to present her case. Dr. Vandana madam, Yes, I had made you the co-host. You can unmute yourself and please present about your case. You can say about your case. yes, yeah. Thank you, madam, Majusa madam, and Lalit Heda sir also for giving me the chance to explain my case over here. Uh,
मैं हिंदी में बात करूंगी। मुझे पता है कि सबको हिंदी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और बाहर बाहर के भी राज्य के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो मैं बहुत सालों से मंजू मैडम से कनेक्टेड हूँ, और इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो बहुत ही सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि हम जैसे लेडीज है, आजकल जेंट्स लोगों को भी काफी काम रहता है, हर कोई जाके पर्सनली कोई भी क्लास ज्वाइन करना और वो सब करना नहीं पॉसिबल है। तो ये जो ऑनलाइन जो क्लासेस जो शुरू है, तो ये बहुत ही अच्छा फायदा दे रहे हैं सभी को। अपना अपना जो भी नॉलेज है अपन अपग्रेड कर सकते हैं इन सब बातों से। और जो लास्ट टाइम मर्मा थेरेपी जो सिखाई है डॉक्टर कोमल खंडेलवाल मैडम ने, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से सिखाया है प्रैक्टिकली। और मैं बोलूंगी कि केजी के बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि ये बाबा ये ऐसे है, फिर वापस रिपीट करके वहीं पर आपका वो याद हो जाना चाहिए, बाद में आपने खोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से उन्होंने सिखाया है। अ, जो भी केस आती है बाद में अपन रिफर करते हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छे से कोमल खंडेलवाल मैडम ने सिखाया है। तो मैं अब अपना केस आपके सामने करूंगी। मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, मेरे काफी शेड्यूल सब इसके कारण, लेकिन मैं ओरली आपको बताऊंगी। और मंजू मैडम के पास मैंने जो रिपोर्ट है वो सेंड किया है, तो उन्हें यदि पॉसिबल है तो वो शेयर कर देंगे आपकी। तो केस ऐसी है कि 21 साल की Dr. Vandana ma'am, you are not audible. अभी सुनाई दे रहा Ah, yes, ma'am. Please present है? हाँ, from the यस। beginning. You start with 21 years old case, na? या हाँ, Yeah. 21 ईयर ओल्ड स्त्री रुग्णा थी। तो वो मेरे पास आई थी उसके डीएनएस के प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। अभी ये केस जो प्रेजेंट कर रही हूँ वो है आई साइड विजन, उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है उस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन वो आई थी मेरे पास डीएनएस के, उसका जो प्रॉब्लम था वो करेक्शन करने के लिए। तो इस पेशेंट की हिस्ट्री कैसी कि वो जब छोटी थी एकदम, एक शायद फर्स्ट सेकंड क्लास में होगी, तब खेलते खेलते उसके फ्रेंड ने उसके नाक पे कुछ तो गिरा दिया। तो उस गिराने के बाद उसका कहना है कि मेरी नाक वो टेढ़ी हो गई है। तो ऐसे करके वो मेरे पास आई थी कि मेरा ये डीएनएस मेरे को ऑपरेटिव नहीं करना है, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैंने जस्ट ही मरमा किया हुआ था, तो मैंने बोला ठीक है अभी करेंगे अपन। तो मरमा उसके लिए मैंने शुरू किया कंटिन्यू। वो मेरे पास एक 6 दिन आई, क्योंकि वो खुद बीडीएस की स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पर नहीं रहती थी कंटिन्यू, उसकी छुट्टी में आई थी। तो वो फैमिली मेंबर भी है मेरे पास, मतलब उनके अदर फैमिली मेंबर भी मेरे पेशेंट है, तो वो इसलिए आई थी मेरे पास। तो उसका मैंने 6 दिन, केवल 6 दिन मैंने उसको मरमा मेरे सामने करके लिया, और उसको मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, हाँ, वो बताइए बीच में शायद। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, हाँ। तो मैम, आप कह रहे थे कि 6 दिन आपने मर्मा आपके सामने उनसे करवा के लिया था। हाँ, उनसे 6 दिन मैंने करवा के लिया, और उसे बाद में लास्ट दिन उसको मैंने सब वापस रिपीट किया, उसे लिखने लगाया मैंने कि वो लिखो आप। तो आप खुद जाके फिर करोगे, रोज एक बार तो ये कंटिन्यू करना ही है आपको। तो अभी जैसे कोमल मैडम ने सिखाया है कि डीएनए के लिए या कोई भी यदि आपका डिसीज है तो उसके लिए ये पॉइंट है करके मरवा नहीं करना है।
आप अपनी उस पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए। प्लीज चेक अगेन विथ योर माइक मैम। शायद आप बात करते हाँ करते माइक म्यूट हो रहा है। हाँ, हाँ। मैम बता रहे थे, आप इस बोल बार रहे थे कि मैम कोमल खंडेलवाल मैम ऐसा नहीं है कि ये डिसीज वर्सेस दिस पॉइंट्स। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने उसकी केस लेनी है, पूरी हिस्ट्री लेनी है, क्या हुआ है क्या नहीं, उस हिसाब से फिर आपने पॉइंट उसके फिक्स करने हैं। तो अभी इनका केस ऐसे है कि मेरे नाक पे कुछ तो गिरा था, तो वो हिस्ट्री है। तो जब आपको कोई भी आघात होता है तो उस समय पहले आपने क्षिप्र मर्म ही लेना है। तो क्षिप्र मर्म लिया, तो फिर अब आपके पास का कौन सा होगा, था हाथ का क्षिप्र मर्म लेंगे आप। तो हाथ का क्षिप्र मर्म लिया। अभी वो डीएनएस है तो काफी उसको बार बार प्रतिशत ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन वो अंदर कुछ तो ऐसे ब्लॉक हुआ जैसे रहता है। यदि पंखे की हवा ले ली या फिर कुछ तो थोड़ा सा डस्ट गया, तो वो पैक हुआ जैसे लगता था, और थोड़े देर एक आधा दिन में वो क्लियर हो जाता था अपने आप, लेकिन वैसे रहता था। तो उसके लिए फिर मैंने उसके आगे का इंद्र बस्ती मर्म लिया, क्योंकि इंद्र बस्ती मर्म जो है वो आपका कहीं भी यदि जल संचित हो रही होगी तो वो कम करने में मदद करता है, इसलिए वहां पे इंद्र बस्ती मर्म लिया है। आगे है कि जो डीएनएस है तो अपने को ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी मर्मा है वो लेने पड़ेंगे। तो वहां पे विदुर और फना मर्मा जो है, आगे है हाँ, तो विदुर जो मर्मा है वो अपने कान के पीछे का है, तो उसको स्टिमुलेट करना है। और जो मन्या फना मर्मा है वो अपने अंदर रहते हैं, जो सप्तपद है वहां पे। तो उसको जीभ बाहर निकाल के अपन जो आवाज करते हैं सी मुद्रा में वैसे करना है। तो अभी इसके साथ अभी विजन के लिए भी यदि प्रतिशय है डीएनए से, तो ये भी हेतु रहता है जब विजन अपनी अच्छी नहीं रहती। तो ये एक हेतु अपन क्लियर कर रहे थे वहां पे। और दूसरा था कि मुझे वो सामने दिख रहा था कि उसका चश्मा है, तो उस चश्मे के लिए मैंने उसमें और ऐड कर दिया अपांग और आवर्त मर्म। अपांग है जो अपने आईब्रोज हैं उसके, ये यहाँ पे जो है वो वहां का पॉइंट है। और आईब्रो के 1/3 में जो है वो आवर्त है। तो सॉरी, बहुत बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन तो उसमें फिर मैंने विजन के लिए वहां पर ऐड कर दिया। तो जब पेशेंट को मैंने लास्ट दिन सब सिखा के भेज दिया था, तो बाद में उसको वापस 1-2 महीने के बाद छुट्टी लगने के बाद, सॉरी पीपीटी मैंने नहीं बनाई हुई है, मैं बता रही हूँ वो रोली आपको सब। अ, और इसमें कोई भी मतलब मैं मरमा के ज्यादा बारे में बोल रही हूँ, तो मैं आपको सब पॉइंट्स बता रही हूँ वहाँ पे। केवल पीपीटी पे का होगा, लिख के आएगा केवल मरमा के पॉइंट, है ना। तो इसलिए 2 महीने के अपॉलॉजी बाद मैम, जब पेशेंट में। जस्ट पार्डन मी। यस। डेलीगेट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशन वंदना थोरात मैम का जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, तो हमारी जो मेन मेंटर है डॉक्टर कोमल खंडेलवाल मैम, शी विल गिव हर पीपीटी प्रेजेंटेशन। ठीक है, वंदना थोरात मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो उनके पास पीपीटी नहीं है, आप सिर्फ उनका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये पॉइंट्स और ये डीएनएस के बारे में भी हम आगे देखने ही वाले हैं, विथ प्रॉपर क्या स्टिमुलेशन करना है। ठीक है, क्षिप्र मर्म स्टिमुलेशन हम आप आज को करवा के देने वाले हैं। ठीक है, आपको खुद हमारे साथ लाइव करना है। ओके, सो वंदना थोरात मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपका नहीं क्या माइंड चैट बॉक्स की तरफ डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि आई नो आप प्रेजेंट पहली बार कर रहे हो जूम मीटिंग पे। तो आप आपकी केस प्रेजेंट करिए। हाँ। ओके। तो
मैंने फिर वो 2 महीने के बाद जब पेशेंट आया तो आगे का मैं उसको चेक करके फॉलोअप देख रही थी। उस समय पेशेंट क्या बोलने लगा कि मेरा बीच में बहुत शिरशुर बहुत हो रहा था। तो मैंने बोला ओके, तो क्या हो गया था, सर्दी हो गई थी क्या क्या, ऐसे मैं पूछ रही थी। तो बोला नहीं 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 मैडम, शिरशुर हो रहा था तो इसलिए फिर मैं वापस जो आईज के डॉक्टर है उनके पास गई और उनको दिखाया। तो वो बोलने लगे नहीं, आपका चश्मे का नंबर ये नहीं है, तो आप आपने जो लगाया है वो ज्यादा नंबर है। तो उन्होंने वापस जो नंबर अभी है वो दिया, तो मैंने चश्मा चेंज करके ले लिया। तो पहला जो था उनका वो -2 था राइट आई का, और लेफ्ट का था वो -1.75 था। तो जब उनका वापस चेंज हुआ तो उस समय राइट आई -1.75 हो गया था और लेफ्ट जो था वो -0.75 हो गया था। तो इतना डिफरेंस केवल 2 महीने में दिखाई दिया है। तो जब वो और कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू है अभी और ट्रीटमेंट चालू है, तो जब वो कंटिन्यू और होगा तो स्पेक्स भी चला जाएगा। तो ये मेरा पूरा केस था और आगे का मैडम बताएंगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये सब केसेस जो रहते हैं ये हमारे लिए बहुत ही एक्सपीरियंस जो आप शेयर करते हो ये बहुत इंस्पायरिंग होते हैं हमारे लिए भी और जो डेलीगेट्स हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं उनके लिए भी। तो मैं जस्ट समराइज करके बता रही हूँ आपको। मैम के पास 21 ईयर्स ओल्ड एक डीएनएस की केस आई थी। तो मैम ने उनकी हिस्ट्री ली कि उनको डीएनएस कब से है। तो जब वो स्कूल में थे तब उनको कोई ट्रॉमा था, कोई चीज उनकी नाक पे गिर गई थी स्कूल में। उसके बाद से ये डीएनएस की प्रॉब्लम शुरू शुरू हुई। ये हम हिस्ट्री इसलिए लेते हैं कि क्योंकि मर्मा चिकित्सा जब हम करते हैं तो इट इज नॉट लाइक कि ये व्याधि ये पॉइंट्स, ये व्याधि ये पॉइंट्स, ऐसे नहीं होता है। आप सोच सकते हो कि बहुत जनों को ऐसा लगेगा कि अच्छा डीएनएस है तो नाक के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो हम कर लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आघात की हिस्ट्री थी इसलिए हमने क्षिप्र मर्मा, इंद्रबस्ती मर्मा, ये 2 मर्मा से पहले स्टार्ट किया और फिर फना मर्मा और विधुर मर्मा हमने किया। तो मैम का कहना था कि 6 डेज मैम ने उस पेशेंट को रोज क्लिनिक में बुला के उनके सामने ये सारे मर्मा स्टिमुलेट करके लिए थे। और मैम ने फिर उनसे लिखवा के लिया कि करने हैं मुझे पॉइंट स्टिमुलेशन व्हेन शी गोज बैक टू हर होम। तो पेशेंट ने फिर से ये सारे कंटिन्यू किए रिपीटेडली अपने घर पे। वंस इन अ डे सिर्फ हमें रिपीट करना है। लेकिन डीएनएस का इलाज करते करते जैसे हमें पता हम देख सकते हैं कि डीएनएस कैन ऑल्सो बी अ हेतु फॉर हर आई विजन का जो उनका डिफेक्टिव था। ये राइट आई का मैम ने बताया कि इट वाज -2 एंड लेफ्ट आई का -1.75। तो वो भी डीएनएस के करेक्शन के साथ उनकी आईसाइट इंप्रूव हुई। वो ऐसा पता चला कि 1 महीने के बाद उनको बहुत हेडेक वगैरह होने लगा तो वो आई चेकअप के लिए चले गए थे मैम, जो पेशेंट थी वो। और जब आई चेकअप करके आए पेशेंट तो उसमें पता चला कि जो उनका -2 राइट आई का था वो -1.75 डिक्रीज हो गया है। और जो -1.75 जो लेफ्ट आई का विजन था वो -0.75 हो गया है। तो यही है हम आयुर्वेद में जैसे हम बताते हैं कि हम जब मेन चिकित्सा करते हैं, मूल की चिकित्सा हम जब करते हैं तो अपने आप रूट एंड जो भी उसके साथ एडजुवेंट थे प्रॉब्लम्स वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो थैंक यू मैम, इट वाज वेरी मच इंस्पायरिंग। आई होप आपको सबको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा मैम का। और इसी के साथ साथ जैसे मैम ने कहा कि ये सब मैम ने ऑनलाइन सीखा है। बहुत सारे वैद्य हैं, वुमेन प्रैक्टिशनर है या मैरिड वुमेन प्रैक्टिशनर आई कैन से, वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है क्योंकि हम जब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर कोमल खंडेलवाल मैम जैसे जब हमें मेंटर मिलती है तो मैम ने क्या हाथ पकड़ के सिखाती है। जैसे मैम ने कहा था, वंदना थोराट मैम ने, कि यूकेजी और एलकेजी के स्टूडेंट्स को हम कैसे घर मतलब स्कूल में ही सब करवा के लेते हैं, घर के लिए होमवर्क कुछ नहीं देते, वैसे ही कोमल मैम जो है वो लाइव लेक्चर के दौरान ही हमारे से वो मर्मर स्टिमुलेशन कैसे करना है 1 बाय 1 करवा के लेती है। मतलब आपको फिर से जाकर रिकॉर्डिंग सुनो,
फिर से देखो, इस चीज का झंझट रहता ही नहीं है। वैसे भी हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं 1 साल के लिए, कोई बात नहीं है। जिसका मिस होता है क्लास वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, लेकिन जो लाइव अटेंड करता है वो वही के वही उनको याद हो जाता है। मैम इतनी थरोली लेती है हर क्लास। तो इसी के साथ साथ मैं ऐसे कहूंगी कि अगर 100% पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन सीखते हैं कि सीख सीख लेते हैं, लेकिन उसमें से 10-20% जो स्टूडेंट्स है जो मैम के आसपास रहते हैं, मैम पूना में प्रैक्टिस करती है निगड़ी में, तो मैडम शी इज वेरी मच ओपन कि किसी को भी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं अगर उनको अपने क्लिनिक में आके अगर प्रैक्टिकली कोई चीजें देखनी है तो मैम वो भी अलाउ करती है कि आप मेरे क्लिनिक में आइए, प्रैक्टिकली मेरे पास आकर आप देख सकते हैं। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी लेती नहीं है मैम। तो ऐसे ही एक मौका डॉक्टर समृद्धि वैद्यकर मैम है, हमारे साथ आज जुड़े हैं वो भी। तो उन्होंने ये वो पुणे में ही रहती है, तो उन्होंने ये मौका देख लिया कि चलो हम वहीं पे रहते हैं तो मैम के पास जाके हम प्रैक्टिकली भी कोई चीजें देखकर समझ सकते हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर to introduce Dr. Samruddhi Vaidyakar ma'am. She is dedicated and academically driven scholar of Ayurveda. She is pursuing currently her MD in Panchakarma. She is third year student है वो, from DY Patil College of Ayurveda and Research Center पिंपरी पुणे से वो अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। And she has completed her BMS graduation from Vidarbha Ayurved Medical College Amravati, where she built a strong foundation in classical Ayurvedic principles. With a sincere inclination towards applied Ayurveda, recently she successfully completed a Marma therapy workshop with us, but her अंडरस्टैंडिंग मतलब उनका ये ऐसा था कि फर्दर उनको और स्ट्रेंथन करना था उनकी लर्निंग्स को। सो शी विजिटेड अवर क्लिनिक टू ऑब्जर्व द मर्मा पेशेंट इन रियल क्लिनिक प्रैक्टिस विद डॉक्टर कोमल खंडेलवाल मैम। और वहां पे शी क्लोजली स्टडीड द पेशेंट रिस्पॉन्स, थेरापेटिक आउटकम्स क्या थे और प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है मर्मा थेरेपी का, everything she saw over there. So today she'll be sharing her experience, her observations, and her learnings, which will certainly motivate us to explore Ayurveda not just as a degree, but as a living clinical science. So please join me in welcoming Dr. Samruddhi Vaidyakar ma'am. मैम अगर आप प्रेजेंट हो तो प्लीज आपका हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको को होस्ट बना पाऊँ, बिकॉज देर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स आई कैंट फाइंड योर नेम। जस्ट रेज योर हैंड। Yes, ma'am. Samruddhi ma'am, you can also start your video, okay? Okay. First of all, thank you so much, Manjusha ma'am. Good evening, everyone. It is an honor for me to share my experience on Marma therapy. I would like to express my sincere gratitude to Dr. Komal ma'am also. Um, I have learned Marma therapy from her last Marma series session, and there Komal ma'am ने हमें बेसिक से लेकर कि एक मर्म की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, मर्म को हमको स्टिमुलेट कितनी बार करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब ब्रीदिंग कैसे होना चाहिए मर्म जब हम स्टिमुलेट करते हैं उस वक्त, तो उससे लेकर ट्रीटमेंट तक एवरीथिंग लाइक स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ सीखा था पिछली सीरीज में. After completing the session, I started applying it in my hospital from various patients who were suffering from musculoskeletal pain, stiffness, and even stress-related complaints. And the results for that were highly encouraging. Being a postgraduate student, I have also tried to tell my colleagues also, and I've also even made them experience that how it really works, and I've even teach them that how it should be done exactly. With that, I also want to thank Komal ma'am because I got an opportunity to visit her clinic and I observed a wide range of patients over there, uh, starting from cervical kyphosis, lumbar spinal stenosis, cauda equina syndrome, acute pain conditions, ACL tears, and various patients like this. Even migraine, depression, etc. And the results on them were truly remarkable. Patients used to come, and one
to 3 settings में they used to get so much of relief, not only in symptoms but also they got an improvement in mobility, postures, and I think that's a great thing. Although I've just begun my journey with Marma therapy, but I think there's a lot to practice for me now and a lot to research on it, along with the other therapies. It's there's a lot of scope for that. Once again, I would like to thank Komal ma'am for guiding me and sharing her knowledge with me, not only through her sessions, but also personally in her clinic, where I get to learn from basic like muscle, what is the position of Marma, to hands-on training on other all the patients that she has been attending. So I want to thank her, and I want to thank Manjusha ma'am also for you know letting me speak about my experience on this. So thank you so much. I would like to hand over to Manjusha ma'am now. Dr. Samruddhi ma'am, this was so much encouraging, and I think you will become a role model for many of the delegates who have joined today. Your journey really reminded many of us about how sincere academic pursuit whatever you are doing in your college, and combination it with the early clinical exposure, right, which many of us didn't get in those days. It This two combination is very much important in everyone's life, and new freshers or the new Ayurveda doctors who are learning nowadays, they get a very good opportunity to go academically also and to go with the clinical exposure also. This combination really transforms the Gen Z students, I can say, and it is an inspiration and role model for the future Ayurvedic physicians. Thank you very much. And the cases which you were telling about Cauda equina syndrome, in those days when we were doing PG or UG at your age, we never heard also, or we never thought also that these cases can be treated with Marma Chikitsa. I'm really thankful. I'm really grateful to the God also that students of your age are getting exposure, such a good exposure. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. एंड लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, आज हमारे साथ डॉक्टर कोमल खंडेलवाल मैम है, जिसकी राह आप देख रहे हो, जिनकी तारीफों की बौछार हमारे दोनों स्टूडेंट्स ने की है. तो आज हम अभी मैडम से ही स्टार्ट करते हैं कि उनकी मुख से हम सुनते हैं कि कैसे हम ये सब चीजें कर सकते हैं. मैम के भी कुछ सक्सेसफुल केसेस हैं, उन्होंने कैसे ठीक किए हैं वो हम देखेंगे. डॉक्टर कोमल खंडेलवाल मैम, इफ यू आर प्रेजेंट, प्लीज रेज योर हैंड. Manjusha ma'am, thank you so much. One sec. I'll just. Can you see me? मैम, आज मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी प्रेजेंटेशन ही आपका इंट्रोडक्शन है, और जो हमारे पास डेलीगेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि उनके कामों मतलब उनके कर्म से उन्होंने जो एप्लीकेशन की है इन सब नॉलेज की अपने क्लिनिक में, उसी से आपका इंट्रोडक्शन है क्या बहुत अच्छे से हो जाता है. सो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन मैम. तो थैंक यू सो मच मैम. मैम पीपीटी दिख रहा है क्या? नहीं मैम, जस्ट अ मिनट, आई हाईलाइट यू, वेट अ मिनट. नाउ आप दिख रहे हो? हाँ, यस, इट इज स्टार्टेड शेयर. यस मैम, यस मैम, यस मैम. थैंक यू सो मच मंजूषा मैम ने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया था कुछ महीने पहले, और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था. आयुर्वेद का एक पार्ट जो बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड है, शायद उसकी जानकारी बहुत ही कम, मतलब डर लगता है क्योंकि मर्माघात से कुछ भी हो सकता है, ये डर के मारे बहुत से लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच पाई हूँ, उसके लिए मैं मंजूषा मैम को बहुत थैंक यू बोलूंगी. वंदना मैम को, समृद्धि को, दोनों को भी बहुत बहुत थैंक यू. एक शिक्षक की मतलब जीत इसी में है कि उसके स्टूडेंट्स वो जो भी सीखे हैं ना उसको अप्लाई कर रहे हैं.
इससे बड़ा और कुछ भी एक यश नहीं होता है कि आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर देम। ठीक है। सो मरमा ये मैजिक ही है, क्योंकि मेरे पास जब मैं पेशेंट्स करती हूँ ना, अभी परसों ही एक पेशेंट निर्विकार में एडमिट थी, तो मुझे वो बोल रही है कि मैम मैं जब पंचकर्मा कर कर आई हूँ स्टीम लेने के बाद में मुझे चेस्ट में थोड़ा पेन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। उसने वहाँ किसी को शेयर नहीं किया था, जस्ट मैं पहुंची थी तो मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं कहा ठीक है। सो मैंने बस अपस्तंभ मर्म उसका स्टिमुलेट किया था। एंड शी इज लाइक, आपको मर्म, आप कुछ मंत्र तंत्र विद्या जानती हो क्या? मैं कहा क्या हुआ? ये मुझे ठीक लग रहा है अभी, मुझे सांस भी लेते आ रही है और अभी मुझे पेन भी नहीं हो रहा है, तो आपको जरूर कोई मंत्र आता होगा। सो दैट वाज अ टोटली मैजिक। एक ही मर्म लिया था, अपस्तंभ मर्म, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया था, मतलब हार्डली फ्यू सेकेंड्स, मे बी 10 seconds और सो, नॉट मोर देन दैट। बट ये रिजल्ट मर्मा ही दे सकता है। बाकी बाकी आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं रिजल्ट आते ही है, बट मर्मा विदाउट एनीथिंग रिजल्ट इमीडिएटली देता है। इसीलिए मैं उसको बोलती हूँ कि वो एक मैजिक है। और मैजिक के बारे में देखेंगे तो ये एक पेशेंट मैंने किया था फ्यू मंथ्स अगो। मेटाकार्पल फ्रैक्चर था, इसको मेरे पास में आया था ये बोलकर कि अभी मुझे लगकर वैसे तो 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मेरे उसके जो फिंगर्स थे ना वो फ्लेक्स नहीं हो पा रहे थे। जो थंब है, थंब का जो अपोज वाला मूवमेंट है ये वाला ना, वो हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, जिसके वजह से उसको ग्रिप नहीं आ रही थी हाथ में। सो मैंने उसको देखा तो पेन टेंडर, मतलब जो फ्रैक्चर पॉइंट था वो थोड़ा टेंडर था, लेकिन फंक्शनैलिटी उसकी गई थी। हम फ्रैक्चर के बाद में बहुत सी बार हमको ये देखने को मिलता है कि फंक्शन नहीं कर पाते हैं मसल्स, कई कई कारणों के वजह से। तो मैंने देखा, मैंने मैंने कुछ नहीं किया उसको, सिर्फ क्षिप्र मर्म मैंने वहां पे स्टिमुलेट किया। पहले क्षिप्र किया, उसके बाद में कुर्च किया, उसके बाद में कुर्च शिर किया, दीज 3 थिंग्स। उसका भी रिस्पॉन्ड सेम था कि मैडम आपको जादू आता है क्या? दैट वाज द थिंग, क्योंकि इमीडिएटली उसकी पूरा फिस्ट फ्लेक्स, पूरा फिस्ट बन गया था। और जो ये अपोज वाला, अपोज नहीं हो रहा था, थंब का मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो भी बहुत नॉर्मली हो गया था, बहुत ही नॉर्मल हो गया था वो। सो ये वॉज लाइक, उसके बाद मैंने उसको कुछ दिनों बाद फोन भी किया था कि तेरा पेन कैसा है क्या, तो बोलता है अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मूवमेंट अच्छा है, फंक्शनैलिटी हाथ की अच्छी है, जो ग्रिप नहीं था वो भी बेटर है। अच्छा, इस केस में मैंने उसको फॉलोअप में भी कुछ बताया नहीं था कि तू घर जाकर क्षिप्र मर्मा स्टिमुलेट कर या कुछ कर, क्योंकि वो उधर ही पूरा, उसके बाद में वो लगभग आधी घंटा मेरे सामने बैठा था। मैंने वापस से इस बार उसका फंक्शन भी चेक कर लिया था। सो रिवर्स कुछ भी नहीं हुआ था, जो भी कुछ रिजल्ट मिला था वो एज इट इज स्टैंड बाय था। ये एक और चीज हमको मर्मा में देखने को मिलती है कि जो रिजल्ट मिला है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टिकता है, वो रिवर्स मोड में वापस नहीं जाता है। कई बार ये होता है कि आज किया है, अभी ठीक लग रहा है, लेकिन अगले दिन वापस से पेन आया है। कई क्रॉनिक केसेस में देखने को मिलता है, लेकिन अक्यूट केस में ऐसा बहुत रेयरली होता है। एक बार मर्मक पीड़न कर दिया तो वो रिवर्स नहीं होता है, दैट्स माय एक्सपीरियंस। सो बाय मर्मा। तो अभी जैसे मैंने ये 2 केसेस आपको बताए ना, दोनों केसेस में हस्तम प्रधानम यंत्रम इतना ही, प्रधानम शस्त्रम इतना ही तो यूज हुआ ना, और तो मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, ना मैंने कोई सुई का इस्तेमाल किया, ना मैंने कोई मशीन का इस्तेमाल किया। हालांकि समृद्धि मेरे क्लिनिक पे आती है, उसको पता है कि मेरे पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पर क्लिनिक में, लेकिन फिर भी मर्म में तो हमको ऐसी कोई भी चीज की, कोई मीडियम की भी जरूरत नहीं है। हम इस्तेमाल कर सकते हैं बट नेसेसिटी नहीं है। कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है कि कोई ब्लड चेकअप करवा लो और कुछ करवा लो, एक्सरे करना मैंडेटरी है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस की नेसेसिटी नहीं है कि हमको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। हमारे बीएमएस के अंतर्गत सुश्रुत में ये सारा विवरण है, तो अलग से कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं है। आपने बीएमएस कर लिया सो यू आर वेरी मच लायबल फॉर मर्मा।
कुछ टाइम भी नहीं लगता है, जैसे मैंने बोला कि दोनों भी केसेस इट टुक मी हार्डली 10 to 15 seconds टू गिव रिजल्ट्स। सो दिस ये ऐसा है, जीरो इन्वेस्टमेंट लेकिन रिजल्ट इंस्टेंट है। ना कोई दवाई का खर्चा है, ना कुछ अलग खर्चा है, कुछ भी नहीं है। तो कई बार टॉर्टिकोलिस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अचानक से लंबर स्पाज्म हो गया है, चमक भर गई करके पेशेंट आपके पास में आते हैं। ऐसे केसेस में श्योर शॉट आप रिजल्ट दे सकते हो, वो भी इंस्टेंटली रिजल्ट दे सकते हो। हाँ, कोई पेशेंट बहुत हैवी है, बहुत बल्की है, तो वहां पर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं, वो मैं आगे कोर्स में आपको बताऊंगी। सो दिस वाज अबाउट, ये था कि मर्मा हमको क्यों जानना जरूरी है एक प्रैक्टिस में। हमारा हमको अगर नाम करना है तो इसका नॉलेज हमारी प्रैक्टिस को हमेशा बहुत 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 आगे ले जाएगा। और जानने के पहले एक और केस बताती हूँ। 65 ईयर ओल्ड नॉन डायबिटिक पेशेंट थी, जिसको वो स्टूल की लग गई थी पैर में उसको, जिसके बाद में उसको ऐसा वूंड हो गया था, जो सेलुलाइटिस भी हो गया था, वूंड था, बहुत पेन था। शी वॉज नॉट ऑन एनी टाइप ऑफ मेडिकेशंस, लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक उसने एंटीबायोटिक्स लिए, IV एंटीबायोटिक्स ले लिए, सलाइन लगवा लिया, ओरल एंटीबायोटिक्स कई दिनों तक ले लिए। इवेंचुअली दैट वो डॉक्टर उनको बोले, उनके जो भी कंसल्टेंट थे, कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, एम्पुटेशन एक यही रास्ता है। उनकी बेटी मेरी पेशेंट है, सो वो उनको मेरे पास लेकर आई थी। उसके बाद में फर्स्ट डे तो मैंने जब उनको मर्मर स्टिमुलेट किया था, तो जो सबसे पहला मुझे मिला था कि थोड़ा बहुत शोथ भी कम हो गया था और पेन भी कम हो गया था। तो वो पहले खुश तो उसी में हो गई थी कि अभी मुझे पेन नहीं हो रहा है, जो जो वो एक थ्रॉबिंग पेन था ना, वो कम लग रहा था। दूसरी चीज उसकी थी कि फिर उसके बाद में मैंने उसको धारा करने को बताया घर पे ही। उसको मैंने क्षिप्रमर्म, गुल्फामर्म और जानुमर्म स्टिमुलेट कैसे, थोड़ा दूर रहती थी तो क्लिनिक पे बुलाना, और फिर ये ऐसे पैर लेके चलना भी मुश्किल था, तो मैंने क्लिनिक पे तो बुलाया नहीं, लेकिन उनके रिलेटिव को ये सारे मर्म पॉइंट्स मेरे क्लिनिक पर मैंने सिखाए थे। 15 दिन के बाद का वुंड आप देख सकते हो उसके बगल वाले फोटो में, इस वाले फोटो में, कि स्वेलिंग काफी सारी कम हो गई है और ग्रैनुलेशन टिश्यू भी बनने लगा है। ये सिर्फ 15 दिन का इफेक्ट था, वो भी विदाउट एनी एंटीबायोटिक्स। कुछ हमारे मेडिसिन जरूर दिए थे साथ में, बट मेजर जो पेन था उसका, वो मर्म से ही तुरंत कम हो गया था। सो ये भी एक जो एक हमारा वो रहता है ना, कि खाली मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में ही हम इसको यूज करेंगे, या पेन के कंडीशंस में ही हम उसको यूज करेंगे। तो ये केस यही बताती है कि हम लोग इसको वाइडली विविडली कौन से भी केसेस में हम इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो रिजल्ट्स बहुत ही सुंदर आते हैं। हाँ, हम हमको हमारे ऊपर विश्वास जरूर चाहिए, बट हाँ, रिजल्ट आते हैं पक्का। मैं नॉन हीलिंग अल्सर से लेकर के कितना भी अक्यूट स्टिफनेस के पेशेंट्स रहने दें, अगेन मेरे पास में सेरेब्रल अटेक्सिया जैसे केसेस के रिजल्ट्स है, कि जो एक बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमको देते हैं। सो दिस इज समथिंग कि हमने अगर हम सीख गए तो हमारी प्रैक्टिस बहुत आगे चली जाएगी। सो आज ऐसे तो हम पूरे के 107 मर्म होते हैं, वो हम पूरे कोर्स में सीखेंगे ही सीखेंगे। एक जानकारी है तो आज मैंने जो यहाँ पे लिया है वो क्षिप्रमर्म, हाथ का क्षिप्रमर्म मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि क्षिप्रमर्म होता क्या है। लिम्स के दोनों लिम्स में दोनों हाथ दोनों पैर, ऐसे टोटल 4 क्षिप्रमर्म हम शरीर में हमारे पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे? टॉन्सिलाइटिस में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, उदान वायु विकृति, व्यान वायु की विकृति, रिहैबिलिटेशन, सर्वाइकल पेशेंट्स के रिहैब में, ये स्पाइना सुप्रास्पाइना टेस्टियर, इंफ्रास्पाइना टेस्टियर के कंडीशन में, जब पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव हमारे पास में रिहैब के लिए आता है, ऐसे कंडीशंस में ये बहुत ही सुंदर रिजल्ट देता है। क्षिप्रमर्म अकेला ही रेडिकुलोपैथी में, फ्रोजन शोल्डर में, एपिलेप्सी में, ऐसे एक विविड रेंज है कि जहां पर आप क्षिप्रमर्म को यूज कर सकते हैं। सीखेंगे? मैं थोड़ी सी देर के लिए शेयर नहीं करती हूँ।
ओके, वीडियोस ऑन कर लेंगे इफ पॉसिबल। थैंक यू सो मच। ओके, उर्दू हाथों का लिम्स का जो ये क्षिप्र मर्म है, पहले मैं लोकेशन बताऊंगी, लोकेशन बताने के बाद में इसको स्टिमुलेट कैसे करना है उसकी एक्चुअल टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो ये हाथ को हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद में ये यहाँ पर एक खड्डा सा हमको पता चलता है। अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमको पता चलना है तो हाथ को ऐसे रखो हॉरिजॉन्टल, राइट। दूसरे हाथ का ये जो लाइन है ये इधर बीच में रखो। बीच में रखने के बाद में अंगूठा जहां भी टच हो रहा है ना, वहां पर आप देखोगे एक माइल्ड पेन है। हर किसी को मर्म स्थान पर अल्प वेदना जरूर होती है। अगर कोई पैथोलॉजी है तो टेंडरनेस भी होगा, बट अगेन हाथ ऐसे रखा, इसका जो ये फर्स्ट वाला लाइन है पर्व है, वो पर्व को ऐसे रख के यहाँ पर जहां पर भी पेन होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर आप थोड़ा सर्च कर सकते हो, वो पेन पॉइंट है उसको ही क्षिप्रमर्म कहा जाता है। होल्ड करते वक्त हम अंगूठे से इस तरह पकड़ेंगे, दूसरी उंगली हम यहाँ लगाएंगे और हम इसको इस तरह से दबाते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी मर्म स्थान पर बिल्कुल भी अतिरिक्त प्रेशर देना नहीं है। हर पेशेंट का थ्रेशोल्ड अलग होता है, हर पेशेंट का सहन करने की क्षमता अलग होती है। उस हिसाब से सोच समझकर बहुत ही अल्प मात्रा में हमको वहां पर प्रेशर देना है। इतना देना है कि उसको वहां पर पता चले कि अल्प वेदना हो रही है, दैट्स इट। इसके ऊपर कुछ भी करना नहीं है। अच्छा, अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इतना प्रेशर दूं नहीं दूं, सो द इजिएस्ट वे इज सर्कुलर मोशन में हाथ घुमाते रहो, दैट्स इट, दोनों साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो डर भी आपका निकल जाएगा। समझ में आया? अब स्टिमुलेट करना कैसे है। स्टिमुलेट करना, सबसे पहली बात आयुर्वेद ने बोला है कि मर्म स्थान ये प्राण वायु के स्थान है, ठीक है। तो प्राण वायु का अगर स्थान है तो बहुत ही ध्यान से संभाल के करना है। सो द थिंग इज कि जब आप इसको स्टिमुलेट कर रहे हो, सबसे पहले आपका हाथ हटा के पेशेंट को बोलोगे ब्रीथ इन। जब पेशेंट ब्रीथ इन करके जब वो एक्सहेल करेगा ना, एक्सहेल करते वक्त आपको प्रेशर देना है। वेरी इजी, आपकी सांस ऊपर जा रही है आपका हाथ ऊपर आ जाएगा, आपकी सांस नीचे जा रही है आपका हाथ दब जाएगा, सिंपल एज दैट। इनिशियल फेज में सिर्फ टच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिजल्ट वैसे भी देने वाला। अच्छा, अब ऐसे क्यों करना है, तो जब वहां से वायु निकल जाता है तो प्राण वायु वहां से कुछ देर के लिए हट जाता है, तो हम उसको प्रेशर देते हैं, हाथ हटाते हैं, सांस लेते वक्त हाथ हटा देते, सांस लेते वक्त दबाना नहीं है। बी केयरफुल विद दिस थिंग। लेकिन अगर इस तरह से करोगे तो जो पेशेंट अक्यूट टॉन्सिल्स भी लेकर आ रहा है आपके पास में, थोड़ा सा खोबरे का तेल यहाँ पर लेकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बच्चे प्रेशर देने नहीं देते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन में आप इधर मसाज करो। एज अ मीडियम यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल थोड़ा सा वार्म करके ले लो, तो टॉन्सिलाइटिस में भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टॉर्टिकोलिस के पेशेंट्स, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स, फ्रोजन शोल्डर से भी ज्यादा अगेन रोटेटर कफ वाले जो पेशेंट होते हैं, रेडिकुलोपैथी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इन अक्यूट अगर कंडीशंस है तो सिंगल सिटिंग में यू कैन गिव देम पेन रिलीफ, रिडक्शन इन टिंगलिंग एंड नमनेस। टिंगलिंग नमनेस तो बहुत इंस्टेंटली कम हो जाता है अगर हम इसके साथ और भी जो हाथ के मर्म है वो स्टिमुलेट करेंगे, तो ये चीज हमको बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देती है। सर्वाइकल पेन के पेशेंट्स, आप खुद को भी किसी को सर्वाइकल पेन है तो आप ये चेक कर सकते हो, मर्म ये जो क्षिप्र मर्म है इसको स्टिमुलेट कीजिए और उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो इंस्टेंटली। अच्छा, अभी इसमें सुश्रुत में क्या कहा है कि मर्माघात, अगर क्षिप्र मर्म पर आघात हो तो आक्षेपक से मृत्यु आती है। सो जिस चीज से मृत्यु आ रही है तो हम उसको उसके ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं अल्प मात्रा में। तो
एपिलेप्सी के केसेस, अपस्मार के केसेस, उन्माद के केसेस, इन सब में डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पैर वाले ले लो, हाथ वाले पैर वाले चारों की चारों ले लो, क्योंकि वो डायबिटीज के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वैसे भी वो पूरे शरीर से निगडित होता है। सिस्टमिक भी बहुत सारे कंडीशंस में हम मर्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इफेक्टिवली। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट इज, अगेन मैंने बताया कि रेडिकुलोपैथी, लंबर पेन, अगर हम पैर का ले रहे हैं तो लंबर पेन। अब मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन की है, हाइपोथायरॉयडिज्म और उदान वायु की विकृति। अब एक्चुअल देखा जाए तो पहली बात तो मर्म व्यान का स्थान है, प्राण का स्थान है, क्योंकि सारे मर्म प्राण के स्थान है। उसके अलावा हर मर्म का अपना अपना एक वायु दृष्टि का के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके केस में क्षिप्र के बारे में अगर हम सोचेंगे तो व्यान वायु और उदान वायु दोनों पर भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग देखने को मिलता है। इसी वजह से हम इसका उपयोग टॉन्सिलाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे केसेस में बहुत ही प्रभावशाली रूप से कर सकते हैं। क्षिप्र मर्म के और भी कई सारे इंडिकेशंस हैं जो हम कोर्स में सीखेंगे ही। यही नहीं, पूरे 107 मर्म बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही मजा आता है मर्म करने में, क्योंकि जब पेशेंट 4 लोग उठाकर लाते हैं और हम मर्म पीड़न कर कर जब उसको ठीक करते हैं ना, वो चलते हुए जाता है सिंगल सिटिंग, तो इसके जैसा सुकून तो कोई डॉक्टर बता ही नहीं सकता। ऐसे मुझे लगता है कि हर डॉक्टर को एक वो चीज लगती है कि हाँ यार, कि मैंने ट्रीटमेंट किया और पेशेंट तुरंत खुश हो गया है। इसके जैसे तो कोई चीज है ही नहीं। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि जब मैं करती हूँ तो वो एक सातवें आसमान पे होता है डॉक्टर, अंदर से तो भी कम से कम, बाहर से दिखाए नहीं दिखाए बट अंदर से जरूर होता है। सो दैट्स इट। ये सब इसलिए था क्योंकि हम अगर आप ये सब इसके आगे सीखना चाहते हैं तो हम 13 फरवरी से सेकेंड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सारे मर्मों के बारे में, उनके लोकेशंस के बारे में दोनों तरीके से देखेंगे, आयुर्वेद के व्यू से भी देखेंगे, मॉडर्न के तरीके से भी देखेंगे, ताकि वो एक कोशिश पूरी करूंगी कि आप लोगों का विश्वास उस पर बैठ जाए। बाकी डिटेल्स आपको मंजूषा मैम बताएंगी। मंजूषा मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच, पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू। इसके पहले का जो वर्कशॉप हुआ था उसके स्टूडेंट्स के काफी अच्छे रिव्यूज थे। जैसे कि मैडम ने बताया, मंजूषा मैडम ने बताया, यहाँ पर आपको हाथों का जादू आप पेशेंट को दिखा सकते हैं, वो खुश हो सकता है। तो इसके लिए एक 7 डे का वर्कशॉप हमने रखा है। डे 1 में हम हिस्ट्री ऑफ थियरी, मर्मपीड़न टेक्निक, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में सेकंड डे में शाखागत मर्म, उसके अप्लाइड एनाटॉमी, केसेस के बारे में बात करेंगे। थर्ड डे में शाखागत मर्म विथ अप्लाइड एनाटॉमी और केसेस के बारे में बात करेंगे। फोर्थ डे में उदरगत मर्म के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ डे में पृष्ठगत मर्म के बारे में बात करेंगे। सिक्स डे में ऊर्ध्व चतुर्गत, और 7 डे में माइंड हीलिंग के बारे में बात करेंगे। और आपने पहले जो केसेस देखे हैं उसमें से आपके ध्यान में तो ये आ गया कि अप्लाइड एस्पेक्ट्स इसका कितना अच्छा है। ग्रुप में मैं कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी डालूंगा, एक लिंक डालूंगा जहां पर जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। हमारे नए ऐप का भी मैं आपको लिंक डालता हूं जहां पर आपको वो कोर्स करना है। अगर कोर्स के बारे में कुछ भी आपका प्रॉब्लम है तो मुझे या मंजूषा मैडम को आप बात कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। किसी की कुछ क्वेरीज है तो एक दो क्वेरीज हम ले सकते हैं और हम सेशन एंड करते हैं। प्लीज किसी की कुछ क्वेरीज है तो अनम्यूट कीजिए और मैडम को पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी आवाज आ रही है बोलिए। मैम? आ रही है, बोलिए। मैम मैं डॉक्टर रूपाली राजपूत हूँ, मेरा बीएचएमएस हुआ है मैम। ओके। लेकिन मुझे अभी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदा में कन्वर्ट होना है मुझे, थोड़ा थोड़ा। तो मैं अभी बहुत सारे वीडियो देखती हूँ। अभी भी ओके। मैं बीएचएमएस होने की बजाय मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन ओके। अभी मैं 14 साल से एलोपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन अभी ऐसे लगता है कुछ तो चेंज चाहिए, क्योंकि पेशेंट वही 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 देख के मैं भी बोर हो गई हूँ।
तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम पंचकर्मा की तरफ डाइवर्ट हो। क्या मैं ये सब सीख सकती हूँ? बेटा सर सब आप नया। बोलेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ मैडम, होम्योपैथी के लिए हमारे पास कोई कोर्स नहीं है। हम्म मैक्सिमम जो भी सभी कोर्स है वो सब आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए ही है। सॉरी इसके हम्म बारे में, लेकिन फिलहाल में हमारे पास होम्योपैथी के लिए कुछ नहीं है। ओके क्योंकि ओके। आईआईएस ये मानता है कि बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें आपकी होना चाहिए। और हाँ आईआईएस बट। ये इंस्टीट्यूट सिर्फ आयुर्वेद ग्रेजुएट्स के लिए बनी है। यहाँ पर जो हम्म आयुर्वेद ग्रेजुएट्स है ऑलरेडी उनका बेसिक सब चीजें हुई होती है। तो ये सभी कोर्सेज सिर्फ बीएमएस डॉक्टर्स के लिए ही है। अच्छा, मैं तो डॉक्टर फिर मैं बीएचएमएस, अगर डॉक्टर बीएचएमएस रहा तो फिर एडमिशन वगैरह या कुछ भी कोर्स नहीं ले नहीं मैडम। सकता है ऐसा है? मैं ओके। डॉक्टर हितार सिंह बोल रही हूँ, बीएमएस हूँ। मैडम स्टिमुलेट कैसे करना है, एक बार बता दीजिए ना। ब्रीदिंग टेक्निक के हिसाब से करना है। इनहेल करते हैं तब आपका हाथ हटा देना है, जब एक्सहेल करते हैं तब प्रेशर देना है। इनहेल करोगे हाथ हटा दो, एक्सहेल करोगे प्रेशर दे दो। इट्स दैट इजी। एक्सहेलेशन पर प्रेशर देना है। मैडम डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए कुछ हाँ बताइए ना। मैडम। बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे सर, वो कोर्स में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके ओके मैम। मैम मैम कई बार हम लोग जो है निडल से भी प्रिक करके मैम मर्म को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे फन मर्म हो गया, विदुर मर्म हो गया। तो मैम उसमें जब हम मर्म के ऊपर उसको डाल रहे हैं, पिन वो कर रहे हैं, तो वो तो मैम मर्म आघात लक्षण आ जाएगा उससे तो मैम। जी पहली चीज तो मर्म पर मुझे लगता है खाली स्तपनी मर्म ऐसा है जहां पर मर्म पर एग्जैक्ट विद्यकर्म किया जाता है। बाकी तो सब जगह इवन क्षिप्र मर्म पे भी देखेंगे तो क्षिप्र मर्म लगभग 2 अंगुल ऊपर है और विद्य करते वक्त 4 अंगुल ऊपर किया जाता है। फना मर्म में भी डायरेक्ट फना मर्म पर विद्या लक्षण नहीं है, ऊपर में विद्या लक्षण विद्या पॉइंट है। तो डायरेक्ट स्तपनी मर्म के अलावा तो और कहीं पर भी हम नहीं कर रहे हैं। स्तपनी मर्म पर भी क्या है कि वो हार्डली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का क्रिया है, तो वहां पर वायु आघात नहीं होता है इसीलिए कर रहे हैं। अदरवाइज मर्म पर डायरेक्ट विद्याकर्मण नहीं किया जाता। जमदग्नि सर करते हैं कुछ जगहों पर। तो मैम कितना स्पेस छोड़ मैम के करना चाहिए, 1 अंगुल का, 2 अंगुल का, कितना स्पेस विद्या के है? बारे में हम नहीं बात करें तो ज्यादा बेटर है। मम मैम आई हैव वन क्वेश्चन। तुमने कहा कि व्हेन यू डू द एक्सरसाइज मे बी ब्रीद आउट दैट टाइम प्रेस करना चाहिए, तो हम इच मर्म को जब कोई प्रॉब्लम है तो 15 टाइम स्टिमुलेट करते हैं, राइट? सो बिल्कुल इसका मतलब 15 टाइम पेशेंट को ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। तो ऐसे एनी मर्म में, सब मर्म में ऐसे ही करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड बिल्कुल दैट वे? बिल्कुल सारे मर्म सेम तो सिस्टम। पेशेंट तो समटाइम टायर्ड हो जाएंगे, आई डोंट नो, 15 टाइम 107 एंड देन मर्म अगेन थोड़ी 15 एक साथ टाइम। लेंगे। हम पूरे हाँ, 107 मर्म थोड़ी एक साथ करेंगे ना। नहीं नहीं, 107 नहीं, जस्ट लाइक क्षिप्र मर्म अभी तुमने बताया, तो पेशेंट की नहीं होते ट्रीटमेंट टायर्ड के लिए। पेशेंट। थोड़ी बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग, नॉर्मल नहीं ब्रीदिंग नहीं, करना हम है। लुक एक टाइम 15 टाइम हम स्टिमुलेट कर लेते, राइट? फिर बीच में रेस्ट करना, कोई बाद में जरूरी फिर। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, उसको हार्डली फ्यू सेकंड्स लगते हैं, आप करके देख लो। या बट इतनी हार्डली। ही एक ही टाइम करना है 15 टाइम, और हाँ दो हाँ। तीन टाइम? नहीं नहीं, एक ओनली ही वन टाइम? टाइम। हाँ। ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। आप सभी का थैंक यू। और आप ऐसे ही आईआईएस से जुड़े रहिए। हम लोग आने वाले दिनों में कंटिन्यूअसली फ्री लेक्चर्स भी रखने वाले हैं, और आपका नॉलेज बढ़ने के लिए, कुछ नई टेक्निक्स, कई कुछ पुराने टेक्निक्स में एक्सपर्ट होने के लिए हमेशा आपके लिए कुछ कोर्सेस और कुछ फ्री लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। कोर्स की फीस है 1500 रुपये। कोर्स के बारे में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल्स डालता हूँ। थैंक यू।